السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی بلاگ نامے سے محمد شاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جتنے دوست احباب مائیں بہنیں بیٹیاں میرے چینل کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، ان سب کا تہ دل سے بہت زیادہ مشکور و ممنون ہوں۔ پاکستان سے، انڈیا سے، انڈونیشیا سے، یو ایس اے سے، سعودی عربیہ سے اور بھی فارن کنٹری سے جتنے دوست احباب مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ نوجوان بچے میرے ڈیلی بلاگ نامے کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں، میں سب کا تہ دل سے بہت زیادہ مشکور و ممنون ہوں۔ اللہ پاک سے دعا مالک کریم سنا رمضان المبارک کی ان مقدس راتوں کو اللہ پاک سنا آپ کے لیے آسانیاں، برکتیں اور عزتیں اور مزید آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ اللہ پاک سنا آپ کے گھر میں خیر و برکات عطا فرمائے، فیوز و برکات عطا فرمائے۔ شب قدر مبارک کی تاک راتیں چل رہی ہیں، آ رہی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا مالک کریم سنا آپ کو ان راتوں میں اللہ پاک سنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پاک نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سنا اس مقدس راتوں کو اللہ پاک سنا آپ کے لیے اللہ کریم سنا برکتوں والا، عزتوں والا اللہ پاک سنا لمحات جو ہیں وہ آپ کی زندگی کے اندر اللہ پاک سنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو لیجیے آج کا بلاگ کرتے ہیں سٹارٹ۔ صحیح البخاری شریف جلد اول باب الصوم مبارک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ 1883، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حشام ان کے والد ماجد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلاش کرو، سبحان اللہ۔ احادیث مبارکہ 1884، بخاری شریف جلد اول باب الصوم مبارک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے اور فرمایا کرتے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کیا کرو، سبحان اللہ۔ احادیث مبارکہ 1885، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ شب قدر 9 راتیں باقی رہنے پر ہیں یا 7 باقی رہنے پر ہیں یا 5 باقی رہنے پر ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ 1886، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، یہ آخری عشرے میں ہے، 9 راتیں گزرنے پر یا 7 باقی رہنے پر شب قدر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 24ویں رات میں تلاش کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ 1857، حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کے متعلق بتانے کے لیے باہر تشریف لائے، سبحان اللہ۔ تو مسلمانوں میں سے 2 شخص جھگڑ رہے تھے، فرمایا کہ میں تمہیں شب قدر بتانے کے لیے نکلا تھا لیکن فلاں اور فلاں جھگڑ رہے تھے، تو وہ اٹھا لی گئی اور ممکن ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتری ہو، لہذا اسے 9ویں، 7ویں اور 5ویں میں تلاش کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ جب 9 راتیں باقی رہتی ہوں یا 7 راتیں باقی رہتی ہوں یا 5 راتیں باقی رہتی ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب 1256، رمضان شریف کے آخری عشرے میں عمل کرنا۔ حدیث مبارکہ 1888، مسروق سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لنگوٹ کس لیتے، اس کی راتوں کو زندہ رکھتے اور گھر والوں کو جگایا کرتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باب 1257، اعتکاف کا بیان۔
आखिरी अशरे का इत्तिकाफ करना और इत्तिकाफ तमाम मसाजिद में होता है, जैसा कि इरशाद रब्बानी है, और औरतों को हाथ ना लगाओ जबकि तुम इत्तिकाफ में हो। मस्जिदों के अंदर ये अल्लाह की हदें हैं, लिहाजा इनके करीब ना जाओ। इसी तरह अल्लाह अपनी आयात बयान करता है लोगों के लिए ताकि वो परहेजगार हो जाएं। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अहदीस मुबारक 1899। नाफे से रवायत है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे का इत्तिकाफ किया करते थे। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। 1890। हदीस मुबारक 1890। उर्वा बिन जुबैर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा हजरत आयशा सदीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इत्तिकाफ किया करते थे। सुबहान अल्लाह। यहाँ तक कि विसाल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा इत्तिकाफ किया करती। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हदीस मुबारक 1891। अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान शरीफ के दरमियानी अशरे में इत्तिकाफ किया करते थे। एक साल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तिकाफ किया और 21वीं रात आई जिसकी सुबह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ से बाहर तशरीफ लाया करते थे। फरमाया, जिसने मेरे साथ इत्तिकाफ किया है उसे चाहिए कि आखिरी अशरे का इत्तिकाफ भी करे। सुबहान अल्लाह। और मुझे शब कदर दिखाई गई और फिर बुला दी गई, लिहाजा तुम उसे आखिरी अशरे की हर ताक रात में तलाश करो। उसी रात बारिश हुई और मस्जिद शरीफ की छत लकड़ियों से बनाई गई थी, वो टपकने लगी। बस मेरी दोनों आंखों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पेशानी पर 21वीं की सुबह को कीचड़ का निशान देखा। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब 1258। हाइजा का मुतकफ के सर में कंघी करना। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक मेरी तरफ झुका देते जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद शरीफ में इत्तिकाफ किए हुए होते तो मैं कंघी कर देती हालांकि मैं हाइजा होती। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह। बाब 1259। मुतकफ घर में दाखिल ना हो मगर ज़रूरत से। हदीस मुबारक 1893। उम्र बिन्नत अब्दुर्रहमान से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद शरीफ में होते हुए सर मुबारक मेरी तरफ कर देते तो मैं इसमें कंघी कर देती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर ज़रूरत के घर में तशरीफ ना लाते जबकि इत्तिकाफ में होते। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। बाब 1260। मुतकफ का सर धोना। असूद से रवायत है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे मुबाशरत फरमाते हालांकि मैं हाइज़ा होती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ में सर मुबारक मस्जिद शरीफ से निकाल देते तो मैं उसे धो देती हालांकि मैं हाइज़ा होती। सुबहान अल्लाह। बाब 1261। एक रात का इत्तिकाफ। हदीस मुबारक 1895। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हज़रत उमर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा और अर्ज़ गुज़ार हुए, मैंने दौरे जालियत के अंदर मन्नत मानी थी कि खाना काबा शरीफ में एक रात मुतकफ रहूँगा। फरमाया कि अपनी मन्नत पूरी करो। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह। हदीस मुबारक 18 बाब 1262। औरतों का इत्तिकाफ करना। हदीस मुबारक 1894 96 सॉरी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इत्तिकाफ किया करते थे। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खैमा नस्ब कर देती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज पढ़कर उसमें दाखिल हो जाते। सुबहान अल्लाह। बस हजरत
हफ्सा ने रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु से खैमा नस्ब करने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने इजाज़त दे दी और उन्होंने खैमा नस्ब कर लिया। जब हजरत ज़ैनब बिन्नत हजश ने ये देखा तो उन्होंने भी खैमा नस्ब कर लिया। सुबह के वक्त नबी पाक सर्वे-ए-कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखा तो उन्होंने भी सुबह नबी पाक सर्वे-ए-कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैमे देखे तो फरमाया ये क्या है? बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम इनके साथ नेकी समझती हो। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस महीने का इतिकाफ तर्क कर दिया और शवाल के किसी अशरे में इतिकाफ किया। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मगर ये बहुत खासुल खास बात है, हमारी समझ की नहीं है। बाब 1263 मस्जिद में ख़ैमे नस्ब करना। हदीस मुबारक 1857 हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी पाक सर्वे-ए-कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतिकाफ का इरादा किया। जब इस मकान के पास पहुंचे जिसमें इतिकाफ करने का इरादा था तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ख़ैमे थे। फरमाया तुम कहते हो कि इनके साथ भलाई है। चुनांचे आप लौट गए और इतिकाफ ना किया जहाँ तक कि शवाल के किसी अशरे में इतिकाफ किया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। बाब 1264 क्या मुतकफ अपनी ज़रूरत के तहत मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकल सकता है? हदीस मुबारक 1858 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए हाज़िर हुई। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद शरीफ के आखिरी रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे के अंदर इतिकाफ में थे। उन्होंने थोड़ी देर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुफ्तगू की, फिर वापस जाने के लिए खड़ी हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और इनके साथ चले यहाँ तक कि मस्जिद शरीफ के दरवाजे पर पहुंचे जो दरवाज़ा उम्मे सलमा के पास है। तो अंसार के दो फर्द गुजरे। दोनों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज किया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफिया बिनत हुई। दोनों अर्जगुजार हुए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह और इन्हें इस पर तअज्जुब हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह गर्दिश करता है, लिहाजा मैं डरा कि वो तुम्हारे दिलों में कोई बात ना डाल दे। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। बाब 1265 इतिकाफ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 20वीं की सुबह को निकलना। हदीस मुबारक 1899 अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि क्या आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब कदर का जिक्र करते हुए सुना? फरमाया हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान शरीफ के दरमियानी अशरे में इतिकाफ किया। हम 20वीं की सुबह को बाहर निकलने लगे तो उस सुबह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा देते हुए फरमाया मुझे शब कदर दिखाई गई थी लेकिन मुझे बुला दी गई है, बस तुम इसे आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। नेज़ मैंने देखा कि पानी और मट्टी में सजदा कर रहा हूँ और जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इत्काफ किया है उसे चाहिए कि वो लौट आए। बस लोग मस्जिद शरीफ की तरफ लौट आए और हमें आसमान में बादल का कोई टुकड़ा नजर नहीं आ रहा था। रावी का बयान है कि बदली नजर आई और नमाज भी खड़ी हो गई। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मट्टी और पानी में सजदा किया, यहाँ तक कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक और पेशानी पर मट्टी देखी। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।